Hello students. Right now the difficult lecture, as I said yesterday, it's biotechnology lecture number 7 and now real application. अभी तक जो हमने पूरा इंफ्रा देखा, that DNA recombinant technology requires target DNA. So we said that we harvest it from a donor cell. There are two additional methods. I'll explain. Okay, अब depth बढ़ रही है ना? So anyhow we isolated target DNA. Okay, target DNA should have sticky ends, and the sticky ends are obtained by cutting target DNA at a palindrome by restriction endonuclease. So we discussed type of restriction endonuclease, its nomenclature, what is palindrome, how sticky ends are developed, and how the target DNA is attached to the plasmid, and we get recombinant DNA. Okay, so for that process, while harvesting the target DNA, we undergo the important process of gel electrophoresis, elution, and we obtain target DNA. Target DNA's number is multiplied by polymerase chain reaction, that is PCR machine. Okay, NCERT में PCR के बारे में ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन हमको थोड़ा देखना है, right? तो हम PCR में रेप्लिकेशन आर्टिफिशियल, ओके, टारगेट डीएनए का रेप्लिकेशन आर्टिफिशियली कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, राइट? ओके, चलो, तो हमको n नंबर ऑफ कॉपीज टारगेट डीएनए के मिल गए. नाउ द नेक्स्ट जॉब इज टू ट्रांसफर दिस विद द हेल्प ऑफ व्हीकल वेक्टर. सो वी enlisted प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. It should have origin, it should have marker gene, right? Then it should have restriction sites. That too one for one restriction endonuclease, preferred one, right? And now we are on page number 199 of NCERT, where we have started discussing cloning vectors, and we have completed 2 points. That what do you mean by a cloning vector, its types, its examples. देखिए उसके बारे में cosmid, phosmid, natural, modified and artificial. We completed what do you mean by origin. This is origin. देखिए ये है EcoR 1 से कट होने वाली, देखो यहाँ पे है EcoR 1 से कट होने वाली एक वेरी कॉमन प्लाज्मिड जो Escherichia coli में मिलती है, और इसका नाम है PBr 322. इसका नाम है PBr 322. So all details will discuss. पहले हमको ये डायग्राम रटना है जो NCERT के पेज नंबर 199 पे है. And what you know already about plasmid. Plasmid is double-stranded DNA, DS circular DNA. It is extrachromosomal. It is not essential for the life. It has its origin. So irrespective of genomic DNA, chromosomal DNA, it can produce its replica, it can produce its copies. Right? Then this is having restriction sites. ये जो पूरे नाम लिखे हैं ना, ये इसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स है. ओके, मतलब स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये अलग अलग साइट पे इसको कट करेगा स्टिकी एंड्स, राइट? ओके, सो हमको ये सब लर्न करना है. एंड ये जो पिंक कलर का 2 एरिया बताया है in NCERT also it is pink, same diagram is there in NCERT. So these two are marker genes. Pink regions are 2 marker genes. What are these pink regions? See, what is written here? Ampicillin resistant, AMPR. So this segment of the plasmid is synthesizing such a mRNA, that mRNA is synthesizing such a protein. That protein is destroying the antibiotic ampicillin. I repeat, this segment of PBr 322, which is ampicillin resistant gene, is synthesizing, transcribing a mRNA. mRNA is translating a protein. That protein destroys the antibiotic ampicillin. So this gene is AMPR, that is ampicillin resistant gene. This pink region is tetracycline resistant gene.
This is tetracycline resistant gene. So this tetracycline resistant gene is again synthesizing a mRNA which translate a protein. That protein deteriorates, destroys the antibiotic tetracycline. समझ रहे हो? So ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसका एक मार्कर जीन, ये दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, इसका दूसरा मार्कर जीन. ओके, सो देखो ये टोटल है PBR322. इट हैज वन ओरिजिन. दीज आर इट्स रेस्ट्रिक्शन साइट्स. सीक्वेंस लर्न करते हैं, राइट. ये पिंक कलर का इसका है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक एम्फिसिलीन. ये है दूसरा मार्कर जीन, selectable marker, which is giving ability, or which is having ability to destroy the antibiotic tetracycline. समझ रहे हो, right? So this is what is total PBR322. यहाँ पे हम एक बात नोटिस करेंगे कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में ये PST और PVUL ये दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, और टेट्रासाइक्लिन के यहाँ पे BAMH1, BUM1 और SAL1 ये दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, राइट. तो हमको अभी सीक्वेंस ध्यान में रखना है. सी O PS PS PV PV ECO CLA HIND BUM SAL ROP, राइट. ओके, सो हमको ये पूरा लर्न करना है. चलो स्टार्ट. PBR322 OO PS PV ECO CLA HIND BUM SAL ROP. One more time. PBR322 OO PS PV ECO CLA HIND BUM SAL ROP. Come to NCERT and some additional part. Again, PBR322 cloning vector. Let us continue. अभी हमने पूरा सीक्वेंस लर्न किया था. ये देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैंने यहाँ पे ओरिजिन ड्रॉ किया है, बाकी के लोकेशन आपने देने हैं. ओके, सो वी आर ड्रॉइंग अ PBR322 स्टार्ट. Draw two circles. It can be a question in state board exam. Okay, so draw two concentric circles. You can use your compass, you can use other weapons, equipments you are carrying in the examination hall, right? Okay, so दो सर्कल ड्रॉ कर लिए. It is double stranded DNA, plasmid, smaller than genomic DNA. It has its origin. बराबर. फिर हमने पूरा सीक्वेंस सीखा था. OPSPV ECO CLA HIND BUM SAL ROP, राइट. फिर से एक बार रट्टा मार लिया है ना. OPSPV ECO CLA HIND, ये तीनों यहाँ पे है बीच में. BUM SAL, राइट. ROP में अगर आप नीचे देखेंगे तो और एक वहां पे लिखा है PVU2. अंडरस्टूड. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है. While drawing diagram, you need to mark two things. Very important one. This is ampicillin resistant gene. ये वाला. ओके, कैसे लिखा है इसको देखो वहां पे. It is written AMPR, ampicillin resistant gene, और यहाँ पे है tetracycline resistant gene. This is ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. While labeling, you need to be very careful that in ampicillin resistant gene, here you are marking two locations, right? OPSPV.
देखिए क्या लिखा है वहां पे, PST1, PVU1। ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर यहाँ पे 2 साइट्स है। बराबर। फिर ये बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस छूटा है उसमें 3 है, देखो, इकोक्लाहिंड। अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्ला एंड हिंड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इको इज बिट अवे फ्रॉम इट। इकोक्लाहिंड, क्ला एंड हिंड आर वेरी क्लोज। देन दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये पूरा, इसको यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, राइट। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इसके पास हमको 2 साइट्स मिलेंगे, बम सल। So BAMH1, SAL1, BAMSAL, right? This is ROP. ROP में यहाँ पे और एक लोकेशन है. What is that? It is PVU2. So ये हमने अच्छे से ड्रॉ करना है, और as I said, हमको सीक्वेंस ध्यान में रखना है. OPSPV, Icoclahind, BAMSAL, ROP. ROP has PVU2. डायग्राम लर्न हो गया. ठीक है, चलो रैपिडली बोलते एक बार. PBr322, PBr322, OPSPV, Icoclahind, BAMSAL, ROP. PBr322, OPSPV, Icoclahind, BAMSAL, ROP. Two sites in ampicillin resistant gene, PSPV. 2 sites in tetracycline resistant gene is BAMSAL. ठीक है, ये बेसिक है. MCQ अगर स्ट्रक्चर पे आते हैं तो. नहीं, व्हाट इज दिस प्लाज्मिड? चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा. सी, PBr322 is name of the plasmid. It is native plasmid of E. coli. Escherichia coli में ये होता है, बट वन मोर थिंग, होगा तो होगा, नहीं होना नेचुरल है. ठीक है, सो ई कोलाई नेचुरली और नॉर्मल ई कोलाई, ये शब्द जब हम यूज करेंगे तो उसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है. ठीक है, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन करने वाले ट्रांसफॉर्म जो है उनके पास ये प्लाज्मिड होगा. ठीक है, हमने 3 शब्द यूज किए थे, नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट. नॉर्मल, ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट. व्हाट इज नॉर्मल Escherichia coli? No plasmid. What is transformed? It has this plasmid which is naturally present, which is not recombinant. I repeat, normal E. coli, natural E. coli, no plasmid. Transformant has this non-recombinant plasmid, natural plasmid. अगर आपने ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है वहां पे अगर आपने कट किया और डीएनए इंसर्ट, टारगेट डीएनए ये प्लाज्मिड में जोड़ दिया, तो ये प्लाज्मिड हो गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए, काइमेरिक डीएनए. अगर बैक्टीरिया ई कोलाई के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है तो वो बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है. So 3 words we are discussing: normal E. coli, no plasmid. Transformed E. coli has this plasmid, and recombinant E. coli has recombinant plasmid. Okay, so this is PBr322. It is found in E. coli. We harvested it from E. coli. हमने E. coli से इसको हार्वेस्ट किया, आइसोलेट किया, और इसको अलग अलग मॉडिफिकेशन करके हमने इसको डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में वेक्टर बोल के यूज किया. सो हु डिस्कवर्ड इट? ओके, द साइंटिस्ट नेम आर बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज. हु डिस्कवर्ड द प्लाज्मिड? बोलिवर एंड रॉड्रिग्यूज. दे नेम इट. ओके, ये प्लाज्मिड का नॉमेनक्लेचर कैसा है? PBr322, P स्मॉल,
Okay, lower side. It will be plasmid. B stand for name of the scientist, Bolivar. R stand for name of the scientist, Rodriguez. And these two scientists, Bolivar and Rodriguez, have given a number, designated a number, which is 322. So the plasmid is labeled as PBr 322. Naming a plasmid is scientist's choice. You can use scientist name. Some scientists use university name. Okay, but some reference is given and the plasmids are labeled like that. Okay, so this is PBr 322 discovered by Bolivar and Rodriguez. It is labeled like plasmid Bolivar Rodriguez 322. It is having two marker gene, ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene and additional properties C. It has two marker gene. लिख लो यहाँ पे marker gene, ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. Ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. आपने लिखने हैं. They are used as marker. How we'll see? How we'll see? Okay, चलो. इसके पास restriction sites जो NCERT के डायग्राम के नीचे लिखे हैं. NCERT के डायग्राम के नीचे लिखे हैं. So it has 7 restriction sites. Okay, I'm not talking about Google. I'm not talking about Wikipedia. I'm talking about NCERT because some information changes are there. Okay, so there are 7 restriction sites. Okay, जिसमें NCERT वालों ने PVU1 को mention नहीं किया है. So they mentioned that the restriction sites are PST1, ECO1, CLA, HIND, BUM, SUL and ROP में जो है PVU2. These are 7 restriction sites are mentioned by NCERT. Okay, then marker gene. Okay, sorry, it get repeated. Okay, marker gene are 2, ampicillin resistant gene, tetracycline resistant gene. ROP, this one. Okay, this ROP is coding for a protein which is required for replication of the plasmid. It is coding for a protein which is required for replication of the plasmid. And you know origin. It is a place which carries information for replication of the plasmid along with deciding its copy number. Right? Okay, so this is what is structure of restriction endonuclease. Now come to functioning. अभी दिमाग लगाएंगे आप. See, if this plasmid is cut by restriction endonuclease, then you have two choices. Either you are using this site to cut. यहाँ पे आप restriction endonuclease से कट करेंगे. Obviously sticky end वाला DNA कट करेंगे. आपने जो भी restriction endonuclease यूज करना है, okay, वो sticky end वाला रहेगा. Okay, so you are using it either or, huh? You need to know. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये restriction site कट करनी है कि ये restriction site कट करनी है. Accordingly, आप ये PBr 322 को restriction endonuclease से कट करेंगे. पहले साइंटिस्ट लोगों ने गेस करके एक्सपेरिमेंटेशन कर लिया. Okay, what would have done by previous historical account? What would have been done? प्लाज्मिड लिया, EcoR1 डाल के देखा कहाँ पे टूटती है. HIND2 डाला, देखा कहाँ पे टूटती है. Okay, so it is experimentally checked, proved, and now we know that this particular site is cut by restriction endonuclease X. This one is cut by restriction endonuclease EcoR1. Sorry. And it might be cut by other restriction endonuclease. So आपको either ampicillin resistant gene के पास sticky end बनाना है या फिर आपको tetracycline resistant gene के पास sticky end बनाना है. Either or. समझ रहे हो ना? Okay, so you need to know कि आप यहाँ पे कट करेंगे कि यहाँ पे कट करेंगे. You are supposed to know. Okay, दोनों जगह से एक ही जगह कट करेंगे क्योंकि
एक ही जगह कट करके हमको एक ही टारगेट डीएनए उसके अंदर डालना है. ओके, प्लीज गो थ्रू इट. या डन विद द बोर्ड. व्हाट आई सेड, हमको या तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये मार्कर जीन जो है उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वहां पे कट करना है, और हमको कहां पे कट करना है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है वहां पे जो जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है हमको वहां पे कट करना है, आइदर और. राइट. ओके, अब दोनों जगह कट करने के बाद क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. उसके पहले क्या आपने बोर्ड पे PBR 322 नाम क्यों दिया है वो लिख लिया. रेस्ट्रिक्शन साइट्स कितने हैं, मार्कर जीन कितने हैं, रॉप का फंक्शन क्या है, क्या आपने ये कर लिया? हैव यू डन विद द बोर्ड? ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग हाउ वी आर यूजिंग दिस प्लाज्मिड इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. सब लोग बोर्ड का राइटिंग कंप्लीट कर लो. See now minute details. Everything which is written in NCERT is explained in this really nice diagram, if you can understand. Right? See, as we said, this is normal plasmid of E. coli PBR 322 which has two sites. अब बाकी के साइट के बारे में हमको सोचना नहीं है. Okay? हमको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में जो रेस्ट्रिक्शन साइट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, राइट, और दैट क्लोनिंग साइट्स है, उसके बारे में सोचना है. अब सिंपल सी बात है, ये पूरी प्लाज्मिड अगर इंटैक्ट है, okay, entire plasmid is intact and this entire plasmid is present in a E. coli. This intact plasmid has ampicillin resistant gene working, tetracycline resistant gene working, because the plasmid is intact and you have not cut it anywhere. So ये पूरी प्लाज्मिड है. हाँ, इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, लेकिन वो कट नहीं है, वो नॉर्मल नेटिव प्लाज्मिड है which is carrying ampicillin resistant gene as well as tetracycline resistant gene. If this plasmid is present in E. coli, if this plasmid is present in E. coli, then the E. coli is resistant to antibiotic ampicillin as well as tetracycline. Okay? क्योंकि ये प्लाज्मिड के पास दोनों जीन इंटैक्ट है, दोनों जीन mRNA बनाएंगे, दोनों mRNA प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन की वजह से एम्फिसिलिन ये एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने मीडिया लिया, मीडिया में आपने एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डाला, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाला, उस पे आपने ई कोलाई ग्रो किया. ई कोलाई के पास ये प्लाज्मिड है. Plasmid has intact antibiotic resistant gene as well as intact tetracycline resistant gene. So the E. coli which is having this plasmid is growing on a media containing ampicillin as well as tetracycline will remain alive. These two antibiotics cannot kill E. coli because the E. coli has this plasmid present in E. coli. E. coli has this plasmid which is having ampicillin resistant gene working as well as tetracycline resistant gene working. Okay, so the bacteria E. coli is resistant to ampicillin as well as tetracycline. Got the thing? Now, being a geneticist, okay, एक microbiologist हो आप, DNA recombinant technology पे काम करते हो. What you did? You took this plasmid, एक container लिया आपने, एक container में आपने plasmids डाले, and you pour a restriction endonuclease. You know that it cut the ampicillin resistant gene के अंदर जो जो restriction site है. आपने एक कंटेनर लिया, उसमें ये प्लाज्मिड डाले, और आपने ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला जो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास जो इसका क्लोनिंग साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट है, वहां पे कट करेगा.
So obviously अगर यहाँ पे कट होता है तो ये प्लाज्मिड ऐसी दिखेगी. कट होने के बाद सी दिस एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो यहाँ पे था, राइट, यहाँ पे आपने कट कर दिया तो ये प्लाज्मिड यहाँ पे टूट गई. यहाँ पे जो इसका पैलिंड्रोम था, that palindrome was sensed by the restriction endonuclease you added, and because of this now ampicillin resistant gene is destroyed. उसकी वजह से क्या हुआ, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो गया. ओके, अब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर ये प्लाज्मिड का डिस्ट्रॉय हो गया, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर ये प्लाज्मिड का डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब ये डीएनए, ये जीन टूट गया, मतलब ये एमआरएनए नहीं बनाएगा. ये एमआरएनए नहीं बनाएगा तो एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, मतलब एम्फिसिलिन को डिग्रेड करने वाला प्रोटीन ये प्लाज्मिड न बना पाएगी. ओके, सो इफ its ampicillin resistant gene is destroyed, then ampicillin resistance is vanished. This plasmid is not giving any more ability to E. coli. ये प्लाज्मिड जहां पे इसको आपने कट किया है, ये प्लाज्मिड E. coli को मीडिया पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एम्फिसिलिन के लिए नहीं रखेगी. Got that? But its tetracycline resistant gene is still intact. Tetracycline resistant gene is still intact. So अगर आपने ये प्लाज्मिड E. coli में डाली है, think about it again. See, आपने मीडिया लिया, मीडिया में आपने एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डाला. ओके, एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक डाला और मीडिया में, ये मीडिया पे आपने ये प्लाज्मिड वाला E. coli डाला. देखिए ये प्लाज्मिड मतलब this plasmid has lost its ability to fight against ampicillin, but it is still having tetracycline resistant gene. Okay, so if you transfer this plasmid in E. coli and you grow this E. coli on a media containing ampicillin, the cell will be killed. समझ रहे हो, right? Because you use restriction endonuclease which cut the restriction site which is present in ampicillin resistant gene. So this is one possibility. What is the other possibility? आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में ये प्लाज्मिड डाला, ये प्लाज्मिड जो कंटेनर में है उसमें आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला. You know that it cut at tetracycline resistant gene. tetracycline resistant gene के अंदर, tetracycline gene के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको कट करने वाला आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, राइट. ओके, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने डाला तो ऑब्वियसली ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर से कट कर देगा, प्लाज्मिड इस तरह से खुल जाएगी, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कट हो गया, जीन डिस्ट्रॉय हो गया. जीन डिस्ट्रॉय हो गया तो एमआरएनए नहीं बनाएगा, एमआरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनाएगा. वो प्रोटीन जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करता है, जो टेट्रासाइक्लिन को डिस्ट्रॉय करता है. ओके, सो यू टेक अ कंटेनर, added the plasmid, added a restriction endonuclease which cuts between the tetracycline resistant gene, that particular restriction site, so the plasmid will open up like this, because of which its tetracycline resistance has vanished and its ampicillin resistance gene is still intact. Okay, so अगर ये plasmid आपने E. coli में डाला तो कहानी उल्टी होगी. Okay, see, you took this plasmid having ampicillin resistant gene working, tetracycline resistant gene destroyed, you added it in E. coli. Okay, now you are having media, media में आपने डाला है tetracycline antibiotic. So what will happen? The media containing tetracycline on which you are growing a bacteria containing this plasmid won't be able to remain alive because tetracycline kills the E. coli. Okay, so this is all now different possibilities, what you are using, where you are cutting, which antibiotic is in media, and how you are selecting a recombinant. आप मुझे बोलेंगे मैडम इतना डिफिकल्ट क्यों सिखा रहे हो? नेक्स्ट डायग्राम. Okay, so prior to that
you just understand it. Okay, अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ भी नहीं करोगे तो चलेगा, बिकॉज ये आपके सिलेबस में ड्रॉ करने लायक कुछ नहीं है. यू टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट. ओके, मैं ग्रुप पे डालती हूँ इसका स्क्रीनशॉट. आपने ये ड्रॉ करना नहीं है, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है. आई रिपीट, E. coli containing this plasmid will be resistant to ampicillin as well as tetracycline, both the antibiotics, because both the genes are intact, both the genes are functional, both the genes prepare mRNA and particular chemical which can destroy ampicillin as well as tetracycline. So the E. coli containing this plasmid will be resistant to ampicillin as well as tetracycline. If you cut it at ampicillin resistant gene, it has lost the ampicillin resistance, but still it has tetracycline resistance. So ये प्लाज्मिड अगर आपने बैक्टीरिया में डाली तो वो एम्फिसिलिन वाले मीडिया पे मर जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले मीडिया पे जिंदा रहेगा. Okay, come to other possibility. If you cut the plasmid at this location, means you destroyed the tetracycline resistance gene. You cut it at tetracycline resistant gene. Okay, तो ये प्लाज्मिड अगर आप इकोलाई में डालते हो तो ये प्लाज्मिड की वजह से वो इकोलाई एम्फिसिलिन वाले मीडिया पे जिंदा रहेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले पे नहीं जिंदा रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई रोट tetracycline resistance vanished, but resistant to ampicillin is there. Okay, so please understand this nicely so that next complicated process will be very easy for you. ये अच्छे से समझ लो. Come to lecture number 8, biotechnology. Hi. It's a difficult one. You can see the complicated diagram behind me. We are on page number 199. हमने PBR 322 लर्न कर ली थी. चलो बोलो PBR 322. P stands for plasmid, B for Bolivar, R for Rodriguez. Discovered the plasmid naturally present in E. coli. Right? It is having a sequence of genes. We learn it. Look at the diagram. 11.4. Page number 199 of NCERT. 11.4. हमने क्या लर्न किया था? OPSPV, इकोक्लाहिंड, बमसलरॉप. राइट. ओके, हमने ड्रॉ भी किया. ओके, अब ये प्लाज्मिड में दो मार्कर जीन है, सिलेक्टेबल मार्कर, दैट इज एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. In ampicillin resistant gene, there are two restriction sites for two different enzymes, that is PST1 and PVU1. It is present in ampicillin resistant gene. Tetracycline resistant gene में दो sites है restriction के लिए, that is BUM1 and SAL1. ठीक है, ये हमने ध्यान में रखना है. Now how to use it? ये एनसीईआरटी में पूरा जो लिखा है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. वो समझने के लिए हमको ये डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी. एंड देयर आर सम हिडन एरियाज व्हिच आर डेल्ट प्रैक्टिकली इन लैबोरेटरी. यू नीड टू नो दिस. ओके, सी, कम टू वेरी फर्स्ट थिंग. डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स टारगेट डीएनए. नाउ यू नो इट. हाउ टू हार्वेस्ट टारगेट डीएनए? टेक अ डोनर सेल, cause lysis, obtain chromosome, remove histone, non-histone, RNA, obtain pure DNA, white in color, cut it with restriction endonuclease. You get variety of fragments of DNA with sticky ends. Now you need to go for screening. Restriction endonuclease के बाद यहाँ पे हमने और एक मेथड फॉलो किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा. That is, we did it screening and isolated DNA, isolated target DNA after screening. I wrote it here. Screening का मेथड कौन सा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जहां पे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के टुकड़े सेपरेट किए और प्रोब ऐड करके टारगेट डीएनए को आइडेंटिफाई किया. सो दिस इज आवर टारगेट डीएनए विथ स्टिकी एंड्स.
This is our target DNA with sticky end. Right? Now this target DNA should be added in vehicle vector. This target DNA should be added in vehicle vector so that it will enter in host cell. Okay? So ये एक मेथड है और दो सीखने हैं, we'll discuss. So you have target DNA. Now this target DNA is added in a plasmid. Let us take example of same plasmid PBr322, which is a native plasmid normally present in E. coli. Okay, E. coli के हमने 3 प्रकार सीखे. नेचुरली उसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा, किसी ने प्लाज्मिड उठा लिया होगा तो उसके पास होगा, रिकॉम्बिनेंट हमने दिया तो होगा. ओके, तो ये प्लाज्मिड है PBr322. ये प्लाज्मिड को भी हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया. We cut it by same restriction endonuclease, and now this plasmid are kept in container. Okay, as I said many times, it is a chance process. Okay, हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में प्लाज्मिड डाले, प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला. अब आप जानते हो कि आपने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला और कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालने की वजह से कौन सा जीन वैनिश होने वाला है, डिस्टर्ब होने वाला है, टूटने वाला है. ओके, और कौन सा जीन इंटैक्ट रहेगा. ओके, सो हमने जो लास्ट डायग्राम देखा था कल का, ओके, इट वाज इंडिकेटिंग एज इफ सी आई एम अ PBr322. दिस इज माय ampicillin resistant gene, this is my tetracycline resistant gene. Now what you did, you cut it over here and destroyed my ampicillin resistant gene and added a target DNA over here. Okay, so अगर आपने ampicillin resistant gene को destroy करके target DNA डाला तो मेरा ampicillin resistance छूट गया, मैं अब सिर्फ tetracycline resistant बच गई. So what is my identity? That because of this recombinant DNA, I have lost the ability of ampicillin resistance and I am having the ability of fighting with tetracycline, and I can remain alive on a media containing tetracycline, and vice versa. If you cut tetracycline resistant gene, added a DNA over here, target DNA, so I lost tetracycline resistance and now only my ampicillin resistant gene is functional. Okay, so you are working either or. या तो ये PBr322 ले लिया आपने ampicillin resistant जीन को कट किया तो वो ampicillin resistant जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काम करेगा एज अ सिलेक्टेबल मार्कर. अगर आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट कर दिया तो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन काम करेगा. सो आइदर और. सो यू नीड टू नो आपने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला है. ओके, सो you took a plasmid, kept in a container, added restriction endonuclease. Okay, you cut ampicillin resistant gene, so some plasmid open up, some didn't. जरूरी थोड़ी ना है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी हर प्लाज्मिड को तोड़े, एक हाथ दूसरा छूट भी सकता है. सो नाउ यू आर हैविंग अ कंटेनर which is having some cut plasmid, some uncut plasmid as it is, and you added target DNA. You kept it in a container. Again a chance process. Okay, देखो अब ये कंटेनर मैंने आपको ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करके बताया कि यहाँ पे चांस प्रोसेस हो गया. What you did, प्लाज्मिड प्लस टारगेट DNA रखा तो इसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा. जो प्लाज्मिड ने टारगेट DNA उठा लिया तो आपको मिलेगा rDNA, काइमेरिक DNA, या फिर आपको सिर्फ मिलेगा प्लाज्मिड. Here are two chances कि प्लाज्मिड ने, ये कट प्लाज्मिड ने ये टारगेट DNA उठा लिया, ओके, या फिर इसने उठाया नहीं तो वो वैसे की वैसे रह गई. बराबर. So now after this process you are having a container which contain target DNA and which contain recombinant DNA, मतलब target DNA plus plasmid and some plasmids which are non-recombinant. Understood? Now this container which is containing, see this is recombinant DNA and these are non-recombinant DNA. This is just a plasmid. इसके पास tDNA नहीं है, target DNA नहीं है. ये प्लाज्मिड है, इसके पास टारगेट DNA है. राइट. सो सी
अब आपने ये कंटेनर में होस्ट सेल डाल दिए। देखो ठीक से समझो, ब्लू कलर के सेल होस्ट सेल है, ब्लैक रेड वाला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है आरडीएनए, राइट, और ये सिर्फ प्लाज्मिड है, नो टारगेट डीएनए इन इट। ओके, सो सी, host plus recombinant DNA, host plus only plasmid, and few will be only host cell which will not uptake any DNA from media. It is a chance process. Okay, ये आपने कंटेनर लिया, कंटेनर में प्लाज्मिड कट कर दिए, उसमें टारगेट डीएनए डाल दिया, कुछ प्लाज्मिड ने टारगेट डीएनए उठा लिया, किसी ने नहीं उठाया, तो आपको दो प्रकार के डीएनए मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट विच आर जस्ट ओरिजिनल प्लाज्मिड। फिर ये कंटेनर में आपने होस्ट सेल डाल दिए। अब होस्ट का चॉइस है, वो चाहे तो प्लाज्मिड उठाए नहीं, ओके, चाहे तो वो नॉर्मल प्लाज्मिड उठा ले, या चाहे तो वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उठा ले। समझ रहे हो, राइट? ओके, अगर ये चांस प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं तो हमको तीन प्रकार के सेल मिलेंगे। ठीक से देखो, ओके, हमको तीन प्रकार के सेल मिलेंगे। एक नॉर्मल सेल जिसने प्लाज्मिड उठाई ही नहीं, एक ट्रांसफॉर्म सेल जिसने ये वाला प्लाज्मिड उठाया जिसके पास टारगेट डीएनए नहीं है, और ये होस्ट सेल जिसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाया। Isn't it three possibilities? But get one point, everything happened in this container. Everything happened in this container and all are present together. तो ये कंटेनर में हमको तीनों प्रकार के सेल का मिक्सचर मिल रहा है। This container is containing all the three different types of cells. Which three different types of cells? One cell which will uptake normal plasmid, one host cell uptaking recombinant plasmid, and one host cell uptaking nothing. It is a mixture of three. So how to separate them? There is one method कि ये जो सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन को एक पेट्री प्लेट पे टिश्यू कल्चर करवाओ। ठीक है, देखो ये बैक्टीरिया का सस्पेंशन है, एक बैक्टीरिया सस्पेंडेड है। आपने वो सस्पेंडेड बैक्टीरिया लेके स्मीयर कर दिए मतलब ये पेट्री प्लेट पे स्प्रेड कर दिए, एक अपने आप होते हैं, राइट? आपने 2-4 दिन ये पेट्री प्लेट रख दी, तो ये जो नॉर्मल बैक्टीरिया था जिसने प्लाज्मिड उठा ही नहीं, उससे हमको ये नॉर्मल बैक्टीरियल कॉलोनी मिली। ओके, ये बैक्टीरिया जिसने ये प्लाज्मिड उठाया, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया लेकिन रिकॉम्बिनेंट जीन उसके पास नहीं है, उससे हमको ये ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी मिली। और जो होस्ट सेल ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए उठाया था, हमको वहां पे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी मिली, बैक्टीरियल कॉलोनी। ओके, अब ठीक से सुनो। यहाँ पे ना पहले एक सिंगल बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके उसने मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बना लिए, दैट इज बैक्टीरियल कॉलोनी बनाई। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बना लिए, दैट इज बैक्टीरियल कॉलोनी बनाई। नाउ व्हाट यू डिड, ये पेट्री प्लेट पे ये एक कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी, तीसरी कॉलोनी, ये कॉलोनी को हम बोलेंगे टी कॉलोनी, ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी। इसको हम बोलेंगे एन कॉलोनी, नॉर्मल कॉलोनी, और इसको हम बोलेंगे आर कॉलोनी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। नाउ व्हाट यू डिड, नॉर्मल कॉलोनी के बैक्टीरिया आपने उठाए और ये टेस्ट ट्यूब में उसका प्योर कल्चर बनाया। So this test tube contain only normal colonies, pure culture. This blue one contain only transformed colonies, only transformed bacteria obtained from transformed colony. And this test tube contain all the cells which are having recombinant DNA in it. Okay, by the way, ये मैं आपको समझा रही हूं, आपको नेकेड आईज से ये पेट्री प्लेट पे बस 2-4 प्रकार की कॉलोनीज दिखेंगे, बाकी कुछ नहीं, राइट? ये जो पूरा प्रोसीजर करवा रहे हो ना, ये दिखता कुछ नहीं। होस्ट सेल लिया, सॉरी डोनर सेल लिया, एंजाइम डाल दिए, फिल्टर किया, नीचे एक्सट्रैक्ट आया,
उसमें दूसरे एंजाइम डाले, फिल्टर किया, नीचे एक्सट्रैक्ट आया। ओके, ऐसा आपने प्रोसीजर कंप्लीट किया, आपके टेस्ट ट्यूब में व्हाइटिश थ्रेड दिखे, शायद वो डीएनए है। प्योर है कि नहीं पता नहीं, आप कितने एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंट करते हो, दैट्स द मैटर, राइट। फिर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, डीएनए टूट गया होगा, आपने एज्यूम किया, सिर्फ आप जानते हो आपने कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, राइट। वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने प्लाज्मिड को भी ट्रीट किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें प्लाज्मिड डाले, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, कुछ टूट गए कुछ नहीं टूटे, आपको कुछ नहीं दिख रहा है। फिर सो कॉल्ड टारगेट डीएनए आपने इकट्ठा रख दिए। अब आप समझ रहे हो कि कुछ प्लाज्मिड ने टारगेट डीएनए लिए होंगे, किसी ने नहीं लिए होंगे, इट इज अगेन अ चांस प्रोसेस। ये मिक्सचर में आपने होस्ट सेल डाल दिए, आपको 3 प्रकार के सेल मिलना एक्सपेक्टेड है। ओके, अब ये 3 प्रकार के सेल सेपरेट करने के लिए हमने ये प्योर कल्चर किया। ओके, उसको टिश्यू कल्चर किया, एक एक बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन किया और हमको अलग अलग प्रकार के कॉलोनीज दिखने लगेंगे। वी नो that one bacterial colony is pure culture or developed from one single type of bacteria. So this entire bacterial colony is pure culture. This entire bacterial colony is a pure culture. बराबर। तो एक बैक्टीरियल कॉलोनी से एक टेस्ट ट्यूब में सस्पेंशन, दूसरे बैक्टीरियल कॉलोनी से दूसरे टेस्ट ट्यूब में, और तीसरे बैक्टीरियल कॉलोनी से तीसरे टेस्ट ट्यूब में हमने 3 प्योर कल्चर ऑब्टेन किए। आपको समझाने के लिए मैंने ये आपको लिख के दिया, हाँ ये ऐसे मिलेंगे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? So there is one more complicated method. What is that? Frequent tissue culturing. Okay, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, T टेस्ट ट्यूब, N टेस्ट ट्यूब, R टेस्ट ट्यूब। हमने मीडिया बनाया बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए। पहले वाले पेट्री प्लेट में एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन दोनों में डाला, दूसरे पेट्री प्लेट में सिर्फ एम्फिसिलिन डाला और तीसरे में सिर्फ टेट्रासाइक्लिन डाला। ठीक है, ऐसे हमने 3 पेट्री प्लेट बनाए। आपने 3 प्रकार के पेट्री प्लेट्स बनाए। एक पेट्री प्लेट में एम्फिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन दोनों एंटीबायोटिक डाले, दूसरे में ओनली एम्फिसिलिन डाला, तीसरे में सिर्फ टेट्रासाइक्लिन डाला। ओके, ऐसे आपने ये 3 और 3 और 3 ऐसे टोटल 9 पेट्री प्लेट्स बनाए। ओके, अब ये पहले 3 का सेट आपने नॉर्मल सेल के लिए यूज किया। सो व्हाट यू डिड, नॉर्मल सेल, नॉर्मल मतलब ये टेस्ट ट्यूब का कंटेंट, नॉर्मल सेल, नॉर्मल बैक्टीरिया, आपने ये पेट्री प्लेट पे, ये पेट्री प्लेट पे, ये पेट्री प्लेट पे डाला। देखो व्हाट यू एक्सपेक्ट, नॉर्मल सेल एम्फिसिलिन प्लस टेट्रासाइक्लिन वाले पेट्री प्लेट पे जिंदा रहेगा क्या? नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल मतलब उसके पास प्लाज्मिड है ही नहीं, ना ये प्लाज्मिड है ना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ही नहीं, तो वो एंटीबायोटिक एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन पे मरेगा, ओनली एम्फिसिलिन पे भी मरेगा, ओनली टेट्रासाइक्लिन पे भी मरेगा। क्रॉस मीन्स इट इज किल्ड। सो जब आप नॉर्मल सेल का ये तीनों पेट्री प्लेट पे टेस्ट लेते हो तो आपको मिलता है ये सेल, दिस सेल कैन नॉट रिमेन अलाइव एंड ऑल द 3 प्लेट्स, rather I'll say when you take a cell from a test tube and culture it on 3 petri plate and you find that this bacteria cannot grow on all the 3 petri plates, means it is not resistant to ampicillin, it is not resistant to tetracycline, it is not resistant to ampicillin plus tetracycline, obviously it get killed on all the petri plates, means it is a normal cell without plasmid। ऐसा रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये नॉर्मल सेल है, क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड ही नहीं है, हर पेट्री प्लेट पे ये मर रहा है। गॉट द पॉइंट? ओके, चलो अब क्या करते हैं, विल कम टू नेक्स्ट वन। अब हमने नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट कल्चर हमने किया ट्रांसफॉर्म्ड सेल। Transformed cell grown on ampicillin, tetracycline, transformed cell grown on only ampicillin, transformed cell grown on only tetracycline containing media.
नाउ इमेजिन, ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल जो है, ओके, हमने क्या बोला था, इसका एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कट करके, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कट करके हमने टारगेट डीएनए डाला था, राइट। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी का एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कट हो गया है। ओके, हमने क्या बोला था, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस वैनिश्ड, राइट। ओके, सो अगर ये ऐसा है, ओके, ये अगर ऐसा ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, देखिए यहाँ पे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन निकल गया है, अब ट्रांसफॉर्म सेल ने तो ये नॉर्मल प्लाज्मिड उठाया है ना, ट्रांसफॉर्म सेल ने नॉर्मल प्लाज्मिड उठाया। व्हाट इज नॉर्मल प्लाज्मिड? जिसका एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट दोनों जीन एक्टिव है। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट? जिसका एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो गया है। हमने किसको टिश्यू कल्चर किया? हमने ट्रांसफॉर्म सेल को टिश्यू कल्चर किया तीनों पे ट्रिपलेट पे। अब देखो ये ट्रांसफॉर्म सेल है, इसके पास एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये यहाँ पे ग्रो करेगा अलाइव, ये टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो करेगा अलाइव, और यहाँ पे भी ग्रो करेगा अलाइव, इजंट इट? सो इजंट इट आइडेंटिटी? अगर बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया तीनों पेट्रीप्लेट पे ग्रो होते हैं, अगर बैक्टीरिया तीनों पेट्रीप्लेट पे ग्रो होते हैं, तो वो नॉर्मल प्लाज्मिड कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर रेजिस्टेंट टू एम्फिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन, एंड व्हेन बोथ टुगेदर इट इज अगेन रेजिस्टेंट टू इट। गॉट द थिंग? नाउ कम टू लास्ट वन। आपने अगर रिकॉम्बिनेंट आर सेल को तीनों पेट्रीप्लेट पे ग्रो किया, नाउ व्हाट इज आर सेल? जस्ट नाउ आई टोल्ड R cell has lost ampicillin resistance, but it is having resistance to tetracycline. It is having resistance to tetracycline. So tetracycline, only tetracycline वाले पेट्रीप्लेट पे ये जिंदा रहेगा, एम्फिसिलिन वाले पे ये मर जाएगा, एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पे भी ये मरेगा। Isn't it a very complicated process? This is what is explained on page number 199. Okay, so by considering n number of permutations and combinations, it is explained. Right? So देखो, see, आप ये टेस्ट ट्यूब में का सेल रिकॉम्बिनेंट है, ये कैसे पहचानोगे? आपने कैसे पहचाना? Because you know that ampicillin resistant gene has lost, so the recombinant cell has lost the ability to grow on. It has lost the ability to grow on ampicillin, right? But it has ability to grow on tetracycline, and obviously it will be killed on both. So when you get this combination, that the bacteria growing in this test tube can resist tetracycline, will be killed on ampicillin and will be killed on both. अगर ऐसा हमको कॉम्बिनेशन मिलता है तो ये हमारा डिजायर्ड सेल है, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट सेल है। इतना प्रोसेस करने के बाद हमको रिकॉम्बिनेंट सेल लोकेट हुआ, तो मैंने ये टेस्ट ट्यूब को संभाल के रखा क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब में रिकॉम्बिनेंट सेल थे। अब ये रिकॉम्बिनेंट सेल को मैंने फिर से टिश्यू कल्चर करके ग्रो किया, लाखों सेल्स बनाए, और लाखों सेल्स ने टिश्यू कल्चर करने के बाद, राइट, जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, बड़े बड़े फर्मेंटर, इंडस्ट्री, सब करने के बाद ये टेस्ट ट्यूब के बैक्टीरिया को मैंने फ्लरिश किया, उनसे इल्ड हार्वेस्ट किया, प्यूरिफाई किया और मार्केट में सेल आउट किया। Isn't it a really tiring and very complicated process? Right? So we have a solution. हमने ये मेथड मॉडिफाई की, सिंपल मेथड ढूंढी, लेकिन हमारे सिलेबस में ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो आप सब लोगों का काम है कि ये चार्ट आंखों के सामने रख के पेज नंबर 199 के लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज दैट? यू आर रीडिंग क्लोनिंग साइट्स. I'll explain it one more time tomorrow, but now you are working on it.
ठीक है, तो सब लोग ये चार्ट निकाल लो, राइट डाउन पेज नंबर 199 एंड रीड इट. Okay, tomorrow again we'll go through it. Write down the chart.